السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان افریقی ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ فلسطین میں امن کے قیام اور پرتشدد واقعات کو روکنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ غزہ میں جاری تشدد کے خاتمے کے لیے اقوام عالم کے درمیان بات چیت کی بھی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اسلام آباد میں مقیم افریقی اور ایشیائی ملکوں کے سفیروں اور ناظم الامور سے گفتگو۔ حکومت کا روزگار پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فاضل کی ملاقات۔ اسکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت۔ بھارتی تنقید کے باوجود وزیر اعظم کی یونیسیف کی جانب سے آزاد کشمیر میں تعلیمی اقدامات کی تعریف۔ تعلیمی شعبے میں ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے اقدامات کی حمایت۔ پی آئی اے کی نجکاری اور ہوائی اڈوں کے آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے مشیر ہوا بازی فرد حسین کی ملاقات۔ وزارت کی امور اور ہوا بازی کے شعبے میں اصلاحات پر بریفنگ۔ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کی نجکاری حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ صحت سے متعلق 2 روزہ عالمی کانفرنس کا کل سے اسلام آباد میں آغاز۔ گلوبل ہیلتھ سمٹ میں 70 سے زائد ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے۔ وبائی امراض کے مقابلے کے لیے وسائل کی فراہمی، مستقل بنیادوں پر فنڈز کا قیام، ویکسین کی فراہمی کانفرنس کا ایجنڈا۔ ویکسین کی تیاری کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ وفاقی وزراء مرتضی سولنگی اور ڈاکٹر ندیم جان کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سہ فریقی دفاعی تعاون کا دوسرا اجلاس۔ تحقیق سمیت دفاعی سامان کی ٹیکنالوجی سے متعلق تبادلہ خیال، تصویراتی اور مشترکہ اہداف کے حصول میں تعاون بڑھانے پر زور۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بھی اجلاس۔ دفاع سمیت تمام شعبوں میں خود کفالت کے حصول کے لیے تعاون بڑھانے کا عزم۔ حکومت کا سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ سٹارٹ اپس کی مالی معاونت کے لیے فنڈ کا اجرا، 2 ارب روپے مختص۔ فنڈ کے ذریعے 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف۔ مصر کے شہر قاہرہ میں پاکستان افریقہ ٹریڈ کانفرنس۔ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ لاکھوں ایکڑ رقبہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ افریقی ملکوں کے ساتھ باہمی تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز کا پاکستان افریقہ ٹریڈ کانفرنس سے خطاب۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراف کیا ہے کہ دی اکانومسٹ میں چھپنے والا مضمون انہوں نے نہیں لکھا۔ یہ مضمون آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی اوورسیز کچھ نیم خواندہ اینکرز اور دی اکانومسٹ مصنوعی ذہانت کی فریبکاری پر شادیانے بجا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کا کل آخری روز۔ نظر ثانی شدہ فہرستیں 11 جنوری کو جاری ہوں گی۔ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات واپس لے سکیں گے، جبکہ انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن۔
عوامی مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. ہمیشہ کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کی آواز بلند کی. بلوچستان کے عوام کو تمام بنیادی سہولیات اور روزگار کی فراہمی یقینی بنائیں گے. سابق صدر آصف علی زرداری کا ڈیرہ بگٹی میں جلسے سے ٹیلی فونک خطاب. وی آئی پی کلچر کا خاتمہ جماعت اسلامی کی ترجیح قرار. انتخابات میں کامیابی نوجوانوں، خواتین، کسانوں، مزدوروں اور ہاریوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. بزرگوں کے لیے بڑھاپا الاؤنس، نوجوانوں کو باعزت روزگار اور خواتین کا وراثت میں حصہ یقینی بنائیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تلا گنگ میں جلسے سے خطاب. ملک کی ترقی کے لیے امن و امان کا قیام ناگزیر. یکساں نصاب تعلیم، صحت اور پولیس کے نظام میں اصلاحات ترجیح ہیں. ضم اضلاع میں تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی تکمیل اولین ترجیح ہوگی. خیبر پختونخوا میں سیاحتی شعبے میں موجود بے پناہ مواقع سے اقتصادی اور معاشی ترقی کا حصول ممکن بنائیں گے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی پشاور میں نیوز کانفرنس. خوشحال اور مستحکم پاکستان منزل ہے. معاشی استحکام کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے. اقتدار کے لیے ملکی ساکھ داؤ پر لگانے والے عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی مسیحی وفد اور دیگر رہنماؤں سے گفتگو. نہتے فلسطینی بدستور اسرائیلی بربریت کے نشانے پر. غزہ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں شدت. ایک روز میں مزید 126 نہتے فلسطینی شہید. تعداد 23,210 ہو گئی. ایمبولینسز بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں. سسکتے انسانوں کو طبی امداد کی فراہمی میں دشواری کا سامنا. انسانی المیہ شدت اختیار کر گیا. بے گھر فلسطینی غذائی قلت، بھوک اور بیماریوں سے نبردآسماں. نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل بھارت بوکھلاہٹ کا شکار. مقبوضہ وادی کے کئی علاقوں میں کرفیو سمیت جبر کے دیگر مذموم ہتھ کنڈوں کا بے دریغ استعمال. جموں کے ضلع سانبہ میں رات کا کرفیو نافذ. قابض فورسز کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، گھروں پر چھاپے. انتظامیہ کا تمام مکان مالکان کو کرایہ داروں کے قوائف جمع کرانے کی ہدایت. پر راج کرنے والے اداکار سلطان راہی کو ہم سے جدا ہوئے 28 برس بیت گئے. 700 سے زیادہ پنجابی اور 100 سے زیادہ اردو فلموں میں فن کے جوہر دکھائے. سلطان راہی کا مکالمے ادا کرنے کا منفرد انداز آج بھی پنجابی فلموں میں رائج ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کی تیاری. قومی کرکٹ ٹیم کا آکلینڈ میں پہلا پریکٹس سیشن. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی T20 سیریز کا آغاز 12 جنوری سے ہوگا. اور کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کی پچ غیر تسلی بخش قرار. آئی سی سی نے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا. جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا فیصلہ 2 دن میں ہوا. گیندوں کے اعتبار سے یہ تاریخ کا مختصر ترین ٹیسٹ تھا. جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ 14 روز میں آئی سی سی کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. تفصیل اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ، چوز پے پاک. خبر
खबरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि फ़लस्तीन में अमन के क़याम और पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मुकीम अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों के सफरा और नाज़िमुल उमूर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए अक़वाम आलम के दरमियान बातचीत की भी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान बेहतरीन सियासी ताल्लुकात रहे और पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्कों के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख़्वाहां है। वज़ीर आज़म ने अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर देते हुए इस हवाले से एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों के सफ़ीरों की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में अलजायर, सूडान, बांग्लादेश, ब्रुनाई, मलेशिया, मॉरिशस और जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर जबकि इथियोपिया, इंडोनेशिया, कीनिया, नाइजीरिया, सोमालिया, ट्यूनिस और जिम्बाब्वे के नाज़िमुल उमूर शामिल थे। वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों को बताया कि चौथी पाकिस्तान अफ्रीका तिजारती कॉन्फ्रेंस काहिरा में 9 से 11 जनवरी के दौरान हो रही है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बड़े तिजारती वफ़द की क़यादत निगरान वज़ीर तिजारत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों की निजकारी करके कौमी ख़जाने को मज़ीद नुकसान से बचाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में हवाबाजी के मुशीर एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हवाबाजी के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने हिदायत की कि PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग के अमल को तेज़ किया जाए और इसमें शफाफियत को मरकजी हैसियत दी जाए। मुशीर हवाबाजी ने वज़ीर आज़म को वज़ारत के उमूर और इस्लाहात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग के अमल पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में अब्दुल्ला फाजिल ने वज़ीर आज़म को मुल्क में यूनिसेफ के फलाही मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि गुज़िश्ता 5 सालों में यूनिसेफ के तहत पूरे पाकिस्तान में इंसानी इमदाद, साफ पानी, ग़िज़ा की फराहमी, तालीम, सेहत और दीगर शोबों के लिए तकरीबन $1 अरब के मंसूबे दिए गए। वज़ीर आज़म ने अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में यूनिसेफ की मुआवनत को सराहते हुए इंसदाद पोलियो मुहिम में आलमी इदारे की मुआवनत को खुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और यूनिसेफ जैसे इदारों के बाहमी ताउन से मुल्क में इंसदाद पोलियो के बारे में अवामी रवैये में मुस्बत तब्दीली देखने में आ रही है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि यूनिसेफ की जानिब से नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करने के मंसूबों के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। सेहत से मुतालिक 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें 70 से ज़्यादा ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद के हवाले से तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना था कि अवाम के सेहत से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए निगरान हुकूमत तरजीहाती बुनियादों पर सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है। पहली बार हो रहा कि एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है वो 10 और 11 को मुनक्किद हो रही है इस्लामाबाद में। तो ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना था कि पाकिस्तान ने सेहत के आलमी निज़ाम को तमाम ममालिक के साथ यकसा कारआमद बनाने के लिए कायदाना इक़दाम उठाए हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट कल इंशाल्लाह से शुरू हो रही है। उसमें 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल मंदूबीन शिरकत करेंगे। हम एक बहुत बड़ी मकसद के लिए आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा कैसे गैल्वेनाइज हो जाए। हम चाहते हैं कि ये एक सस्टेनेबल बुनियादों पे एक कंटिन्यूड एडवोकेसी हो जो कि इंश्योर करे कि जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस की कैपेसिटी है वो इक्विटी बेस्ड हो, यानी तमाम ममालिक कि वो फैसिलिटीज़, वो ह्यूमन रिसोर्स, वो वैक्सीन, वो फाइनेंसिंग अवेलेबल हो बकदर ज़रूरत उनकी। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि आलमी निज़ाम सेहत को मुस्तकबिल में किसी भी बड़ी आलमी वबा से निपटने के लिए पहले से तैयार करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन सहफरीकी दिफाई ताउन का दूसरा इजलास GHQ रावलपिंडी में हुआ। इजलास में तहकीक और तरक्की समेत दिफाई आलात की टेक्नोलॉजी में मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों फरीकैन ने मुश्तरका मकासद के हुसूल और दिफा में खुद किफारत के लिए तकनीकी, माली और इंसानी वसाइल को जोड़ने की अहमियत पर जोर दिया। आइंदा माह रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो के दौरान दिफाई सनत में ताउन के हवाले से सहफरीकी इजलास पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए दिफाई सनत में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई ताउन के हवाले से तीसरा इजलास GHQ रावलपिंडी में हुआ। ISPR के मुताबिक इजलास में दोनों बरादर मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इजलास में फ्रीकैन ने तेजी से तरक्की करती दिफाई टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इजलास के शुरका ने दिफाई सनत के तमाम शोबों में खुद किफालत के हसूल के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया। काहिरा में पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश का आगाज हो गया है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज और मिस्र के वज़ीर तिजारत अहमद समीर ने किया। नुमाइश में पाकिस्तान की 100 से ज़्यादा कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के ममालिक से 80 से ज़्यादा ताजिर और चैम्बर के नुमाइंदे भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इफ्तिताही खिताब में डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिस्र और शुमाली अफ्रीका के ममालिक के साथ बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहा है। कॉन्फ्रेंस से मिस्र के वज़ीर तिजारत अहमद समीर और पाकिस्तानी सफ़ीर साजिद बिलाल ने भी खिताब किया। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज और मिस्र के वज़ीर तिजारत अहमद समीर के दरमियान काहिरा में चौथी पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश के मौके पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ज़रा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और खिदमात समेत अहम शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। निगरान वज़ीर ने पाकिस्तानी मंडियों को मशरिक़ी वस्ता और शिमाली अफ्रीकी खित्ते तक रसाई के काबिल बनाने के अज़्म का भी इरादा किया। और हुकूमत ने नया कारोबार शुरू करने वालों की माली मुआवनत के लिए फंड का इजरा कर दिया है। तफसील बताएंगे फहद अजीज। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्टार्टअप फंड की तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के लिए 2 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। इससे स्टार्टअप्स को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 बरस में पाकिस्तान स्टार्टअप्स में तकरीबन $800 मिलियन बैरूनी सरमायाकारी हुई। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की सिफारतकारों और मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनियों ने शिरकत की। फंड का मकसद ये है कि अगर एक स्टार्टअप जो हमने इंक्यूबेट की है और उसको पैसे हैं इन्वेस्टर से दरकार, तो अब इन्वेस्टर को सिर्फ 70% इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। 30% तक इन्वेस्टमेंट हुकूमत उस स्टार्टअप में करेगी। हुकूमत हर साल इसमें तकरीबन 2 अरब रुपया इन्वेस्ट करेगी और इसके थ्रू तकरीबन 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट बाहर से मुतवक्को है। और ये जो स्टार्टअप्स हैं इनकी कुल वैल्यू हर साल तकरीबन 50 अरब रुपया बढ़ेगी। तो इसका मतलब है हर साल हम तकरीबन 50 अरब की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम में। वफाकी वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि मुल्क में 8 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दरामदी यूरिया की मुनासिब कीमत पर फरोख्त के तरीक़ाकार की मंजूरी दी है। कमेटी का इजलास निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ। ECC ने स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा के हवाले से रीलैंडिंग पॉलिसी से इस्तिस्ना से मुतालिक सब्सिडी ग्रांट समझौते पर दस्तखत करने की भी मंजूरी दी। कमेटी ने हॉकी समेत दूसरे खेलों के फरोग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि साबिक चेयरमैन PTI ने एतराफ़ किया है कि दी इकोनॉमिस्ट में छपने वाला मजमून उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि ये मजमून मसनूई ज़हानत के जरिए तैयार किया गया था। समाजी वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा चेयरमैन PTI ने भी मजमून की रियासत और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। PTI ओवरसीज, कुछ नेम खाना एंकर्स और द इकोनॉमिस्ट मसनूई ज़हानत की इस फरेबकारी पर शादियाने बचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले की फरहमी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत कल करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली शामिल हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि वो सियासी जमात की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद करे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन और इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो पार्टियों की जमाती इंतखाबात समेत इनकी फंडिंग के मामलात को देखे।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने GHQ हमला केस में साबिक चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत की। साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए तोशाखाना केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान को कमरे अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। नायब की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहों की फहरिस्त पेश की गई। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम की। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत करते हुए फरहा गोगी, वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम और दीगर मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और उनके नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी गई। नैब हुकाम ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला किया। नैब इजलास में CD अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि उनकी जमात इक़्तिदार में आकर अवाम की तकदीर बदल देगी। जमात इस्लामी के पास ऐसा मंशूर है जिससे नौजवानों, खवातीन, किसानों, मजदूरों और हारियों की जिंदगियों में खुशहाली आएगी। तालागंग में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि इक़्तिदार में आकर VIP कल्चर का खात्मा और खवातीन को विरासत में उनका हक दिलाएंगे। बुजुर्गों को बुढ़ापा अलाउंस और नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क से बिजली, गैस, पानी की किल्लत और का खात्मा करके वसाइल के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, वही अवाम के मसाइल का हल निकालेगी। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से टेलीफोनिक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने मौका दिया तो बलूचिस्तान के अवाम को तमाम बुनियादी जरूरियात फराहम करेंगे। इक़्तिदार में आकर सूबे के अवाम को सहूलियात और रोजगार देंगे। जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पसमानदा तबकों की नुमाइंदा जमात है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों और मजदूरों के हुकूक की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि मुंतखब हुए तो मुल्क में यकसा निसाब तालीम राइज करेंगे। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात हमारे मंशूर में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार किए बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। परवेज खटक का कहना था कि सूबे में सयाहत के फ़रोग़ में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं, उस पर तवज्जो देकर सूबे की तकदीर बदली जा सकती है। परवेज खटक ने कहा कि अगर हुकूमत बनाने का मौका मिला तो इदारों में ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे रिश्वत कल्चर ख़त्म हो सके। लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को बेहतर करके इख्तियारात दे दिए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से बरतानवी हाई कमिश्नर ने वफ्द के हमरा लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन और मुंतहा अशरफ भी मौजूद थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर मिस जोए वेयर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग खुशाइंद है। बाहमी ताल्लुकात का दायरा मजीद वसी करने की जरूरत है। बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर ने कहा कि बरतानिया तालीम, सेहत और दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ बाहमी इश्तराक जारी रखेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि इंतखाबात से मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होना चाहिए। सियासी जमातें मिलकर वतन अजीज के माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करें। मसीही वफ्द और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के नए मौके और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना असल एजेंडा होना चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इक़्तिदार के लिए मुल्की साख को दाव पर लगाने वाले अवाम के खैरखा नहीं हो सकते।
सिंध के वसीतर मुफाद में तमाम जमातों के साथ इश्तराक की कोशिश कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि सूबे सिंध गुज़िश्ता 15 सालों में बहुत पीछे चला गया है और उसके बुनियादी मसाइल पानी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर कानूनी तामीरात की भरमार के साथ साथ नाकिस मनसूबा बंदी ने रोशनियों के शहर को अंधेरे में डाल रखा है। इसी वजह से ग्रैंड अलायंस पर काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से एक बेहतरीन इत्तेहाद, एक बेहतरीन कमिटमेंट के साथ, एक बेहतरीन विजन के साथ, और वो विजन है सिंध की तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसके ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून को कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई GDA को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई JUIF को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई MQM को, ANP को, जितने हमारे इत्तेहादी हैं, तो स्पिरिट यही है कि हमने वो कुर्बानी देनी है, लेकिन इस सूबे के अंदर से वो जो एक माफिया का कब्जा है उसको ख़त्म करना है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने कहा कि मुश्तरका काविशों से सिंध के देही और शहरी इलाकों में लोगों की महरूमियों का इजाला करेंगे। इस सूबे को हम करप्शन से भी निजात दिलाए, यहाँ का जो सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए ये तमाम पार्टियाँ पुरअज़म है। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि मुश्तरका काविशों से सिंध के अवाम को जल्द खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बाज़ कुव्वतें इंतखाबात में ताख़ीर के लिए साजिशें कर रही हैं जो किसी सूरत में मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडे का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। टिकट्स की तकसीम का फैसला 1-2 रोज़ में हो जाएगा, जिसके बाद नवाज शरीफ मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर ने गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुरखरू हो गए हैं। नवाज शरीफ को आईनी और सियासी हुकूक वापस मिल गए हैं जो नाहक छीने गए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा किसी सियासी बुनियाद पर नहीं, बल्कि मौलाना अपने कारकुनान और उम्मीदवारों की सलामती चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि कल का अदालती फैसला आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ पर मबनी है, जो किसी मखसूस शख्स या किसी जमात के लिए नहीं था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान के अवाम के 7 साल ज़ाया हुए, मुल्क में मुआशी बहरान आया, इन मसाइल का मदावा भी करना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाया, मुल्क को सी पैक दिया, जबकि एक नाम निहाद रहनुमा ने मुल्क को सिर्फ बहरानों से दोचार किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर फैसल नदीम ने कहा है कि इस इंतखाबात में अवाम मुखलिस और दयानतदार नुमाइंदों को मुंतखब करें। कराची में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि हमारे उम्मीदवारों को मसाइल का इदराक है और उन्हें हल करने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग नून के कराची से 58 उम्मीदवार हैं। हम घर घर जाकर अपना पार्टी मंशूर लोगों तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और NA 127 की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज जुल्फिकार अली बदर ने कहा है कि NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ी तादाद में वोट दिलवाएंगे। अक़लियती विंग सेंट्रल पंजाब के इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन की सतह पर राब्ता कमेटियां तश्कील दे रहे हैं। अक़लियती समाजी रहनुमा डॉक्टर सलीम मसीह ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्म कारकुनों को साथ रखा जाए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। हर गली मोहल्ले में सियासी उम्मीदवारों की तस्वीर, बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा हैं। आवाम अपने उम्मीदवारों से मुस्बत तब्दीली की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तफसील बता रहे हैं वकार हैदर। मुल्क को जमहूरी खतूत पर उस्तवार करने के लिए अवाम पुरअज़्म हैं। अवाम आइंदा आम इंतखाबात में हक़ राय दही के इस्तेमाल को अपने बेहतर मुस्तकबिल के साथ जोड़े हुए है। हर वोटर अपनी अपनी जमात से मस्बत तब्दीली की उम्मीद रखे हुए है। मुल्क में जो इंतखाबात का सिलसिला चल रहा है, ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। इंतखाबात हुए तो मुल्क का पाया चलेगा, लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, लोगों के काम होंगे। वोट जो है कौम की अमानत है और वोट हम लोग देंगे तो अच्छे नुमाइंदे लोग जो है कास्ट होंगे, अच्छे लोग आएंगे। हम बिल्कुल अपना वोट कास्ट करेंगे,
उनको खास करेंगे जिन्होंने तालीम पे काम किया, सेहत पे काम किया। जमहूरी मुल्कों में इंतखाबात जो हैं ये एक ज़रूरी अमल है। वोट तो कौमी फरीज़ा है, इंशाल्लाह वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। यकीनन इंतखाबात का अमल पाकिस्तान के दाखिली और खारजी मामलात के लिए बेहतर ही नहीं बेहतरीन साबित होगा। पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीद रखे हुए हैं कि इक़्तिदार की राहदारियों में वो मुल्क व कौम की फलाह के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत जारी है। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। 11 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन के हल्कावार पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त पर वोटर और उम्मीदवार एतराज़ या तजवीज़ जमा करा सकते हैं। तर्जुमान के मुताबिक जिला रिटर्निंग अफसरान इन एतराज़ात और तजावीज़ पर 12 से 17 जनवरी के दौरान फैसले देंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि आम इंतखाबात से 15 रोज़ कबल पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आवेज़ा कर दी जाएगी। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने दोहरी शहरियत रखने वाले उम्मीदवार मलिक आमिर की अपील खारिज कर दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपील पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस राहिल कामरान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर समाअत की। सिंध हाई कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों को कलअदम करार देते हुए अब तक 135 से ज्यादा कागजात मंजूर किए जा चुके हैं। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून, JUI, GDA और ANP समेत दूसरी जमातों के उम्मीदवार की अपीलें मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट में कायम 3 एपलेट ट्रिब्यूनल्स में आज मजमूई तौर पर 41 कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने अपीलों पर समाअत की। एपलेट ट्रिब्यूनल्स ने बलूचिस्तान से 367 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अब सिर्फ 33 अपीलों को निपटाना है। बलूचिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 405 अपीलें दायर की गई थी। जस्टिस हाशिम खान काकर और जस्टिस आमिर नवाज राना अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल की। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का ये कहना है कि गज़ा पर इसराइली हमलों से मजमूई तौर पर 23,210 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 59,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौजियों ने गज़ा में 12 मकामात पर हमले किए जिनमें 126 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 241 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का ये कहना है कि कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और इसराइली हमलों की वजह से एम्बुलेंस गाड़ियाँ ज़ख्मियों तक नहीं पहुँच सकी। गजा में वज़ारत सेहत ने कहा है कि बेघर फ़लस्तीनी भूख, ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों का शिकार हैं। दूसरी जानिब डबरान के इलाके गंदरिया में फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान हलाक हो गए। मगरबी किनारे के इलाके तुलकरम से एक अफसोसनाक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली फ़ौजियों ने 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मारने के बाद अपनी गाड़ी उन पर चढ़ा दी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि गजा में जंग के दौरान इसके मज़ीद 9 फ़ौजी हलाक हुए हैं और हलाक होने वाले फ़ौजियों की कुल तादाद 187 हो गई है। सैन फ्रांसिस्को में 28 जनवरी को खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। भारत से आई हुई NIA की टीम के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसिल खाने के दौरे के मौके पर सिख फॉर जस्टिस ने एहतजाज किया। सैकड़ों सिख गाड़ियों की रैली के जरिए एहतजाज करते हुए भारतीय काउंसिल खाने पहुंचे। रैली में शामिल एक फ्लोट पर मकतूल इंदिरा गांधी के साथ उन्हें कत्ल करने वाले सिखों की तस्वीर भी नुमाया थी। सिख रहनुमा गुरपत सिंह पन्नू ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि भारत एक अरसे से सिखों को आज़ादी के हुसूल से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तारीख गवाह है कि सिखों ने हमेशा अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का जवाब दिया है। सिखों ने आज़ादी वतन के हुसूल के लिए बुलेट के बजाय बैलेट का इंतखाब किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने माजूर अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम सतह पर मुलाजमत के कोटे पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में ईवान सदर में माजूर अफराद के लिए मुलाजमत के कोटे पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सदर ममलिकत ने तजवीज़ दी कि सरकारी महकमों को चाहिए कि वो इन्हें इनकी महारत के मुताबिक मुलाजमत फराहम करें। सदर ममलिकत ने कहा कि माजूर अफराद पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 12% है और मुलाजमतों के कोटे जैसे मुस्बत इक़दाम से इनकी मुलाजमत में मौजूद रुकावटों को दूर करने में मदद मिल सकती है। सदर ममलिकत ने कहा कि वो निजी स्कूल्स पर जोर देते रहे हैं कि माजूर बच्चों को दाखिल करें। सेक्रेटरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इजलास को इनके इदारे की जानिब से माजूर अफराद की सहूलियात के लिए उठाए गए इक़दाम के बारे में बताया। सदर ममलिकत ने माजूर अफराद के हुकूक के लिए वजारतों के ताउन को सराहा।
लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल को तफसीलात फ्राहम कर दी हैं। तफसीलात में कमीशन के सरबराह, अरकान और मुलाजमीन की तनख्वाहों का रिकॉर्ड शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से लापता अफराद के केसेस की तफसील समेत अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इस वक्त कमीशन में पंजाब के 260, सिंध के 163, KPK के 1336, बलूचिस्तान के 468, इस्लामाबाद के 55 और आज़ाद कश्मीर के 15 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड की इफ्तिताही तकरीब कराची में हुई। मश्क का मकसद समुद्री सलामती को दरपेश रिवायती और गैर रिवायती खतरात को मद्देनजर रखते हुए पाक बहरिया और दीगर हुकूमती इदारों में ताउन को फ़रोग़ देना है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर शुरका को मश्क के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में PNSC, ANF, KPT, PMSA, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और दीगर हुकूमती इदारों के साथ साथ माहीगीर बरादरी के नुमाइंदों और मीडिया की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। हवालदार मोहम्मद जाहिर शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाके मर्दान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहीद हवालदार मोहम्मद जाहिर की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी हुकाम, इलाके के अमायदीन और रिश्तेदारों ने शिरकत की। हवालदार मोहम्मद जाहिर शहीद शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। शहदा की कुर्बानियां हमारे इस अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। नाज़रीन, सरज़मीन पाकिस्तान की मिट्टी में लातादाद शहदा और गाजियों का खून शामिल है। इन शेरों और गाजियों में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिद रेजिमेंट के सिपाही ज़र्क सईद भी शामिल हैं। सिपाही ज़र्क सईद 30 अप्रैल 2021 को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके बटल सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान बारूदी सुरंग की जद में आ गए थे, जिससे उनकी एक टांग शहीद हो गई। इस गाजी का जज्बा आज भी मुल्क की खिदमत के लिए जवान है। मेरा नाम सिपाही ज़र्क सईद है। मेरा तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली से है। मैंने 2009 में पाकिस्तान आर्मी की मुजाहिद रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। 2021 में मेरी यूनिट लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल सेक्टर पर तैनात थी। 30 अप्रैल 2021 को हमें दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए पेट्रोलिंग का मिशन सौंपा गया। दौरान पेट्रोलिंग में बारूदी सुरंग की जद में आ गया, जिसकी वजह से मेरी एक टांग शहीद हो गई। मुझे खुशी और फ़ख्र है कि मेरी टांग वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुई। मेरी टांग शहीद होने के बाद मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी फ़ख्र के साथ जी रहा हूँ। वतन की खातर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं हाज़िर हूँ। दुश्मन भारत के लिए मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी और अवाम मुल्क की हिफाजत के लिए मुतहद हैं। हमारी सरहदें महफूज हैं। हम वतन की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में शोहदा फोरम बलूचिस्तान की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन जवानान पाकिस्तान और कश्मीर अब्दुल्ला गुल ने कहा है कि हम अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान के अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हम शोहदा के वरसा के साथ बैठे हैं। दहशतगर्दी हर शक्ल में नामंजूर है। उन्होंने कहा कि भारत में जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, नया एडवेंचर शुरू होता है। पाकिस्तान की फौज जो है वो इंतहाई बहादुराना अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ FC के लोग जो है वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। कस्मा पुरसी के आलम में, कम वसाइल के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लायक तहसीन किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द को जो है कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसको हम सोशली जो है बाइकआउट करेंगे। इल्ज़ाम तराशी और मगरबी मीडिया का सहारा लेके पाकिस्तान को बदनाम करने की जो है साजिश और ये रंगबाजियाँ बंद होनी चाहिए। इसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर आवाम की बात है तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से हम जवाब देना जानते हैं। हम जवाब देंगे। नाज़रीन, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 1016 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस आने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद 4,62,799 हो गई है। अफगान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में कायम RG कैंप्स में रिहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं। सरहदों पर वन डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज यकीनी बनाया जाएगा और चमन बॉर्डर के बाद चागी पर भी लोग पासपोर्ट से ही सरहद अबूर कर सकेंगे।
निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 5 जनवरी से अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले मरीजों के लिए भी पासपोर्ट की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया है। जान अचकज़ई ने कहा कि हमसाया मुस्लिम बरादर मुल्क ईरान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्द दोनों ममालिक के मुश्तरका दुश्मन हैं। कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां काबिज हुकाम की तरफ से 26 जनवरी को भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया से कबल पूरे इलाके में भारतीय फौजियों ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, शोपियां, राजौरी और पुंछ और दीगर अजला में तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हुकाम ने जम्मू खित्ते के जिला सांबा में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इंतजामिया ने तमाम मकान मालकान को भी हिदायत किया कि वो अपने किराएदारों के कवायफ हुकाम के पास जमा कराएं। फैसला मोदी हुकूमत की नाक़िस माशी पॉलिसीज़ की वजह से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हज बैतुल्लाह का ख्वाब बहुत से लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। हज दरखास्तों में नुमाया कमी देखी गई है और रवा साल सिर्फ 400 अफराद ने हज के लिए दरखास्तें दी हैं, जबकि इलाके के लिए 11,500 का कोटा मुख्तस किया गया था। ये तादाद गुज़िश्ता साल मौसूल होने वाली 14,200 दरखास्तों के बरक्स इंतहाई कम है। भारतीय हुकाम ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को ज़ाती वजूहात की बिना पर नई दिल्ली जाने की इजाज़त दे दी है। ये बात जामे मस्जिद श्रीनगर के इंतजामी इदारे ने श्रीनगर में एक बयान में बताई। भारत ने न सिर्फ 7 दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी तसल्लुत जमा रखा है, बल्कि लाखों कश्मीरियों को वतन छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। जी हाँ, ऐसी ही दास्तान मकबूजा इलाके से आज़ाद कश्मीर हिजरत करने वाले उस्मान अली हाशिम की भी है। आदिल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। ये उस्मान अली हाशिम हैं जो गुज़िश्ता 32 बरसों से अपने खित्ता ज़मीन और अपने ख़ानदान से दूर मुजफ्फराबाद के मुहाजिर कैंप में मुकीम हैं। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को बारूद का ढेर बनाने और पुरम कश्मीरियों को तोपो तफंग के जरिए ज़ेर करने की कोशिशों में मसरूफ़ भारत ने इन्हें 3 दहाइयों से अपने ख़ानदान और वतन से दूर रखा हुआ है। 13 बरस की उम्र में मैंने फैसला कर लिया और मैं हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आया, क्योंकि ये खित्ता जो आज़ाद है, तो अभी तो मैं कहता हूँ कि वो जो ज़ख्म है 33 बरस के, वो जो हमने अपनी आंखों से देखे, वो आज भी मैं कहता हूँ कि तरोताज़ा हैं। अपने वतन और ख़ानदान की याद उस्मान अली हाशिम को दरियाए जहलम के किनारे खींच लाती है, जिसकी लहरों को देखकर उस्मान अपने वतन की खुशबू महसूस करते हैं, क्योंकि ये दरिया मकबूजा कश्मीर से होकर आता है और इस दरिया में हजारों शहदा का लहू शामिल है। उस्मान अली हाशिम जैसे हजारों कश्मीरी हैं जो अपने वतन और घर वापसी के ख्वाब आंखों में सजाए बैठे हैं, मगर मकबूजा कश्मीर पर गैर अखलाकी और गैर कानूनी कब्जा जमाए बैठा भारत इन ख्वाबों को हकीकत का रूप धारने नहीं देता। भारतीय जुल्म जबर और इस्तबदाद का शिकार रहने वाले उस्मान अली हाशिम समेत लाखों कश्मीरी अक़वाम आलम से सरापा सवाल हैं कि 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद इन्हें इनके पैदाइशी और बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत से महरूम क्यों रखा गया है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए मोदी ने राम मंदिर को भी दांव पर लगा दिया है। जनता दल पार्टी के रहनुमा अजय यादव ने मोदी हुकूमत के घिनौने मंसूबे का पर्दाचार करते हुए कहा कि बीजेपी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर बम धमाका करेगी। रहनुमा अजय यादव ने बताया कि मोदी हुकूमत हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाना चाहती है। ज़राए के मुताबिक भारतीय पुलिस को एक नामालूम शख्स की कॉल मौसूल हुई, जिसमें 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर धमाका करने की धमकी दी गई। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान सईद अहमद शेख की वालिदा इंतकाल कर गईं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी और सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद और मैनेजिंग डायरेक्टर PTV मुबश्शिर तौकीर शाह ने DG रेडियो पाकिस्तान की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। अपने अलग अलग ताज़ियती बयानात में उन्होंने सईद अहमद शेख समेत उनके अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूमा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही को हमसे बिछड़े 28 बरस बीत गए, मगर वो अपनी खूबसूरत अदाकारी के बाइस आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। सुल्तान राही की फ़नी खिदमात के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर की। बंदे बड़े ठीक ठाक कोने नी नक्का रोटी कटनी नहीं चाहिए, एक करी न कर सोया।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सुल्तान राही के जिक्र के बगैर अधूरी है। खसूसन पंजाबी फिल्मों में उनकी अदाकारी अपनी मिसाल आप है। सुल्तान राही ने फिल्मी कैरियर का आगाज असिस्टेंट के तौर पर किया, ताहम अदाकारी का जुनून उन्हें मारूफ हिदायतकार इशफाक मलिक के पास ले आया, जिन्होंने उन्हें 1956 में अपनी फिल्म बागी में एक किरदार दिया। इसी दौरान वो मुतअद्दिद फिल्मों में बतौर फाइटर नजर आने लगे और रफ्ता रफ्ता पंजाबी फिल्मों में अपनी जगह बनाई। फिल्म साज असलम डार की फिल्म बशीरा में सुल्तान राही को पहली बार हीरो का टाइटल रोल मिला, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में मुनफरिद पहचान अता की। नामवर बनने के लिए छोटे से छोटे काम से स्टार्ट लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। बशीरा के बाद फिर मैंने पिक्चर की वहशी जट, हसन अस्करी साहब ने उसका एक कैरेक्टर बना दिया गंडासे। आला तालीम याफ्ता सुल्तान राही का ताल्लुक उर्दू घराने से था, मगर उन्होंने ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में काम किया। वो पंजाब के गैरतमंद गबरू की हकीकी तस्वीर कशी करते थे। मुखो ना है घ्यो बेचनी ते मौले जट नु वेखण चलियां। ओ तू मौले नु वेख के की कर रहा है? मुस्तफा कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी बड़ी कामयाब रही और दोनों के एक्शन और मकालमे आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। फन का ये अजीम सुल्तान 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब कत्ल कर दिया गया। सुल्तान राही का नाम और काम तारीख और फिल्म बीनों के जहनों में हमेशा जिंदा रहेगा। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची में निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर से बहरिया के कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आला और कमांडर कराची ने पेशा वाराना उमूर पर बातचीत की। सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने कराची के इलाके काठोर में M9N5 लिंक रोड इंटरचेंज का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लिंक रोड मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसे मोटरवे के साथ जोड़ने की जरूरत थी, जिसका संग बुनियाद रख दिया गया है। सेक्रेटरी वर्क्स ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि M9M5 लिंक रोड मंसूबे से मलीर, बिन कासम और लांढी टाउन्स के गुंजानाबाद इलाकों की ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने तहसील खानपुर के माहिदीन पर मुश्तमिल वफ़द ने पेशावर में मुलाकात की। वफ़द ने इलाके के आवाम को दरपेश मसाइल से वज़ीर आला को आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स पटवार से मुतालिक लोगों की शिकायत और मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरियाँ मुनक्किद करें। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को इलाके के हस्पतालों और स्कूलों में अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नहरों की भल सफाई की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबे की नहरों की भल सफाई से तकरीबन 4 लाख एकड़ इजाफी रकबा सैराब किया जा सकता है। भल सफाई की ये मुहिम आइंदा माह के वस्त तक मुकम्मल कर ली जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में 5000 किलोमीटर तवील नहरों की मुरम्मत का काम भी जल्द मुकम्मल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने तलबा को सफरी सहूलियात की फराहमी और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए आसान इकसाद पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की फराहमी का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में तलबा तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक देने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि पहले मरहले में पंजाब बैंक के ताबन से 10,000 तालिब इल्मों को इकसाद पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी, जबकि 2,000 से ज़ायद खुसूसी अफराद को भी 3 पहियों वाली ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि जल्द इलेक्ट्रिक रक्शों की फराहमी का भी आगाज कर दिया जाएगा। नाज़रीन, माल मवेशी काश्तकारों के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से चारे पर पड़ने वाले असरात के बायस शोबा लाइव स्टॉक भी मुतासिर हो रहा है। तफसील बताएंगी हुमा सदफ। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बारिशों के न होने से इस वक्त जहां इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं मवेशियों के चारे की पैदावार और अफादियत में कमी मवेशी पालने वालों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। मुसलसल 6 महीने तो बारिश नहीं पै रही और धुंध की वजह तो मौसम की तब्दीली की वजह तो चारे ते बीमारी आ गई और जानवर जेडे चारा कम खा रहे हैं और कमजोर हो गया, जिसकी वजह दुध भी कम हो गया। किक्कर दे पत्ते ते सतूता दे पत्ते गिर गए जी, धुंध की वजह तो जी। मवेशी पालने का काम सदियों पुराना है और कई खानदानों की रोजी रोटी सिर्फ गाय, भैंस, बकरियों और दूसरे मवेशियों की देखभाल और तिजारत से मशरूत है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारे चारे पे, भैंसों के चारे पे बीमारी काफी ज्यादा आ गई है और जिसकी वजह से हमारे जानवर चारा खाना छोड़ गए हैं। साडा जो माल डंगर ने वो चारा नहीं खाते ते उनकी वजह नाल साडे दुध की बड़ी कमी आ गई है। लाइव स्टॉक का शोबा मुल्क की मईशत का अहम जुज है, जो आबादी की दूध और गोश्त की जरूरियात पूरी करने के साथ साथ बरामदात में भी हिस्सा डालता है और इस पर मनफी असरात का मतलब मईशत पर मनफी असरात हैं। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी से निजी तालीमी इदारों के सरबराहान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर तालीम ने कहा कि निजी तालीमी इदारे मुल्क में इंसानी वसाइल की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। निजी तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप्स की फराहमी से मुस्तहिक तालिब इल्मों के लिए मयारी तालीम के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी मयार को बेहतर बनाने और बच्चों के दाखिलों को बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है। अकादमी अदबियात इस्लामाबाद में रिटायर्ड ब्रिगेडियर नोमानुल हक फरुख की किताब धूप छाँव की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसमें निगरान वफाकी वजीर जमाल शाह समेत अदबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर जमाल शाह ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर नोमानुल हक की किताब धूप छाँव के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और किताब में तंज़ व मज़ाक को सराहा। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली इलाका जात और शिमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में भी -8, कालाम -6, गोपस में भी -6, जबकि गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 5, कराची 13, पेशावर में 2, जबकि कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। ऑकलैंड में ग्रीन शर्ट्स ने पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश की। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगी। सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। दीगर मैचेस 14, 17, 19 और 21 जनवरी को खेले जाएंगे। ऑकलैंड, हैमिल्टन, डोनाल्डन और क्राइस्टचर्च मैचेस की मेजबानी करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की पिच को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान केप टाउन टेस्ट का फैसला 2 दिन में ही हो गया था। गेंदों के एतबार से ये तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट था, जिसमें 642 गेंदें कराई गईं। कप्तानों ने भी पिच पर तहफ्फुजात का इज़हार किया था। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने पिच के हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। मैच रेफरी की रिपोर्ट जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को भेज दी गई। जनूबी अफ्रीका और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहे। आपका शुक्रिया।